Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. So welcome to the first chapter of your course of ES Psychology. अब इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? Let's get an overview about that. इस overview के अंदर we will be talking about three things today, inshallah. And those three things are, number one, the field experiments, lab experiments, and natural experiments. So in general, we will be talking about the experiments. ठीक है? उसके बाद we will be talking about the strengths and weaknesses of using experiments as a tool of conducting research. उसके बाद हम लोग बात करेंगे ethics in psychology कि ethics in psychology क्यों मैटर करते हैं, क्या रीजंस हैं हम लोगों को क्यों एथिकल रिसर्चेस करनी जरूरी है, किस तरीके से हम लोग एक रिसर्च को एथिकल बना सकते हैं, क्या पॉइंटर्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी एक रिसर्च जो है वो एक अनएथिकल स्टडी बन जाती है, एक अनएथिकल रिसर्च बन जाती है. So let's not waste time and let's just dive into it. सबसे पहला सेक्शन हमारा जो है that is about our experiments. Experiments किस तरीके से जो है वो चल रहे होते हैं and how do we actually get a total how do we identify the different types of researches, the different types of experiments. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स की बात अगर हम करें, एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है द लैब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है, व्हाई इज इट कॉल्ड अ लैब एक्सपेरिमेंट, वी जस्ट डाइव इनटू दैट. A lab experiment or an experiment in general, let's talk about experiment in general first. Experiment in general होता है जहां पे हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. So basically it is a research in which we are identifying the interaction between two variables, and these two variables are number one the IV and number two the DV. IV और DV क्या है इसके अंदर हम लोग जाते हैं लेटर ऑन. अगर हम लोग IV और DV शॉर्ट फॉर्म है, लेट्स लुक एट द फुल फॉर्म ऑफ IV एंड DV. IV का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड DV का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, सो IV एंड DV आपको इसके फुल फॉर्म्स पता चल गए. IV का मतलब होता है ये वो वेरिएबल है, independent variable that is not dependent upon anything else, it works independently. And IV is the variable that can be manipulated and is manipulated by the researcher. मतलब अगर मैं एक रिसर्चर हूं तो मैं इस वेरिएबल को कम या ज्यादा कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन माय डिसीजन. So I'd like to give you an example for this. For example, if I'm teaching you guys, while I'm teaching you guys, मैं एक रिसर्च करने का सोचता हूं. मैं कहता हूं कि यार I want to identify whether बच्चों को जब मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता हूं तो वो ज्यादा बेहतर समझते हैं या जब मैं उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझते हैं. So now over here, what I want to see, या इसको इस तरह सोचो कि what are the things that are under my decisions. मैं आपको फिजिकल भी पढ़ा सकता हूं, मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूं. So the mode of teaching becomes IV. ठीक है, so mode of teaching IV बन गया. क्यों IV बन गया? बिकॉज वो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं. मैनिपुलेट से मेरा मतलब ये हुआ कि I can either teach you physical classes or I can teach you online classes. So if I today choose to teach you online, then that means कि मैंने IV को मैनिपुलेट कर दिया, right? Now when I'm teaching you online or in person या physical classes में उनका रिजल्ट क्या आता है, that is my DV. So DV, dependent variable, on the other hand, is the variable that is going to record
the result of manipulation that was done onto the IV, मतलब IV को जो मैंने manipulate किया था, उस manipulation का effect will be seen onto the DV. I hope that is clear for you all. So DV यहां पे क्या होगा? DV यहां पे होगा the performance of my students. ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स को जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाया तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, फिर जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को फिजिकल या इन पर्सन पढ़ाया तो उनका क्या रिजल्ट था, ये दोनों रिजल्ट्स को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास डीवी बनता है, तो परफॉर्मेंस बेसिकली बिकम्स माय डीवी. IV is the mode through which the teacher is teaching. I hope that makes sense for you guys. Okay जी, so हमने ये चीज क्लियर कर ली कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के अंदर देयर आर टू वेरिएबल्स. पहला वेरिएबल होता है द आईवी जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. नंबर टू सेकंड वेरिएबल होता है जिसको हम डीवी या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. इफ दैट इज क्लियर टू यू गाइस, लेट्स मूव ऑन टू आवर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. सो हमारे पास बहुत तरह की एक्सपेरिमेंट्स होती हैं. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टाइप दैट वी हैव over here is the lab experiment. Why is it known as a lab experiment? या इसको lab experiment क्यों कहते हैं? What does a lab experiment stand for? Lab experiment का मतलब होता है कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूं जिसके लिए मैं लोगों को पार्टिसिपेट करने का कहता हूं और लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट. अब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जब इन्वॉल्व हो जा रहा है या जब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मैं पार्टिसिपेंट्स को कॉल कर रहा हूं इन ऑर्डर फॉर देम टू टेक पार्ट इन माय रिसर्च, देन दैट बिकम्स अ लैब एक्सपेरिमेंट. लैब एक्सपेरिमेंट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ओ सर लैब एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि मशीन्स लगी हुई होंगी, ब्लड टेस्ट हो रहे होंगे या बहुत बड़ा एमआरआई मशीन होगा या टेस्ट ट्यूब्स होंगी या साइंटिफिक लेबोरेटरी होगी. नहीं नहीं नहीं, लैब एक्सपेरिमेंट को आप इस तरह समझे. लैब एक्सपेरिमेंट इज अ प्लेस दैट इज कंट्रोल्ड. इट इज एन एनवायरनमेंट दैट इज कंट्रोल्ड बाय हु? बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ. अगर मैं एक रिसर्चर हूं, मैं वापस से अपनी वही पढ़ाने वाली एग्जाम्पल के ऊपर जा रहा हूं. मैं क्लासरूम में बैठ के अगर आपको पढ़ाता हूं या मैं आपको ऑनलाइन बैठ के आपको पढ़ाता हूं, इन दोनों केसेस के अंदर आई एम और आई हैव कंट्रोल ओवर माय सिस्टम्स. मेरी क्लास में कौन बोल सकता है, कौन बैठ सकता है, कौन जा सकता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरह से आपने एंटर होना है, कब एंटर होना है, कैसे नहीं एंटर होना, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? द रिसर्चर. सही है. So with that, it is a place that is controlled. So a lab experiment is conducted in a controlled environment. Number one. Number two, it has high standardization and replicability. I am going to underline standardization and replicability. इसको हम देखते हैं क्या चीज है ये. इसको मैं मार्क कर रहा हूं A, इसको मैं मार्क कर रहा हूं B. So I'm going to write what I mean by this. A. So सबसे पहले जब मैं कहता हूं स्टैंडर्डाइजेशन, इट हैज स्टैंडर्डाइजेशन और इट इज स्टैंडर्डाइज्ड. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि इसके अंदर कुछ तरीके होंगे. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आई एज अ रिसर्चर विल बी फॉलोइंग. ठीक है.
और ये सब होने की वजह से, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की वजह से, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होने की वजह से, कौन सी चीज पहले होगी कौन सी चीज बाद में होगी, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट होता है। वेयर आई हैव अ सर्टेन वे टू कंडक्ट माय रिसर्च। इस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हमारे पास रेप्लिकेबिलिटी आ जाती है। नाउ बी, सेकंड पार्ट, रेप्लिकेबिलिटी आ जाती है। नाउ व्हाट इज रेप्लिकेबिलिटी? रेप्लिकेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मेरी रिसर्च एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर से गुजरी होगी, विच मींस कि अगर मेरी रिसर्च को कंडक्ट करने के स्टेप्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरी रिसर्च कोई और वापस से रेप्लिकेट कर सकता है। दैट मीन्स कि कोई और मेरी रिसर्च मेरे स्टैंडर्ड्स को देखकर, मेरी चीजों को, मेरे स्टेप्स को देखकर वापस से कंडक्ट कर सकता है टू आइडेंटिफाई वेदर मैंने रिसर्च सही करी थी या नहीं। जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। आई सी, तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कलर चेंजिंग वगैरह वगैरह, राइट? अगर उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ना हो, तो क्या हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? क्या बच्चे जो हर साल एक प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कलर चेंजिंग, मैग्नीशियम वगैरह डाल के, ये वो वगैरह करके जो बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर देम टू डू इट अगेन? नो, इट इज नॉट। एंड सेम गोज विद रिसर्च इन साइकोलॉजी। फॉर एनी साइकोलॉजिकल रिसर्च टू बी standardized, sorry, for any psychological research to be authentic, it needs standardization। एंड जब स्टैंडर्डाइजेशन होगी, तो कोई भी इस रिसर्च को वापस से रेप्लिकेट कर सकता है। सही है? सो रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? व्हेन एनीवन कैन रीडू और परफॉर्म द रिसर्च again by following the steps। ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद नंबर 3 हमारे पास क्या है? हाईली कंट्रोल, हाई कंट्रोल्स ओवर वेरिएबल्स। नाउ वेरिएबल्स हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए थे। वेरिएबल्स हमारे पास दो हैं। नंबर 1 आईवी, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, एंड नंबर 2 डीवी, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है? आईवी एंड डीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है, बिकॉज हम लोग टीचर्स बहुत इन रूटीन होते हैं, आईवी डीवी बोलने के, तो हम लोगों के मुंह से आईवी डीवी निकलता है। बट आपने इनिशियली independent variable, dependent variable कहना, so that you guys also learn terminology. Remember, terminology is one of the very major parts. It plays a very major and vital part in having a good grade, in writing a very good answer. तो terminology आपकी बहुत on point होनी चाहिए। अच्छा जी, हाई कंट्रोल्स होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हाई कंट्रोल्स का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि मेरे पास, ऑब्वियसली बात है, जब मैंने कहा मैं एक रिसर्चर हूं, मेरे पास स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है, मतलब मेरे डिसीजन के अलावा कोई और कोई चीज नहीं कर सकता। जो मैंने चीज करी वो मैं ही, जो मैं चीज करना चाहता हूं मैं वो ही करूंगा, until unless I choose not to do it। एंड हाई कंट्रोल होने का मतलब क्या हुआ? कि मेरे पास पूरी कंट्रोल है इफ आई वांट टू कंडक्ट दिस रिसर्च इन एनी वे। तो ये कंट्रोल मेरे पास है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने रिसर्च के ऊपर, अपने कंट्रोल वेरिएबल्स के ऊपर एक कंट्रोल रखूं, तो मैं रख सकता हूं। दैट मींस कि मेरे पास कंट्रोल है कि मैं आईवी को मैनिपुलेट करूं। करेक्ट? मेरे पास कंट्रोल है टू मैनिपुलेट द आईवी। करेक्ट? सही है? मेरे पास कंट्रोल है कि मैं किस वेरिएबल को अफेक्ट होने देना चाहता हूं। दैट मींस आई हैव द कंट्रोल in order to, or whether if I want my DV to be affected or not। सही है? सो मेरे पास एक हाई कंट्रोल होता है मेरे वेरिएबल्स के ऊपर। उसके बाद नंबर 4,
low ecological validity. All right, low ecological validity. Now, low ecological validity समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा what exactly is ecological validity. भाई ये क्या चीज होती है? What is this? So, ecological validity समझते हैं सबसे पहले. It is the extent to which my research is close to the natural environment. मेरी रिसर्च कितनी ऑथेंटिक है टू द रियल वर्ल्ड. लेट्स से अगर मैं आप लोगों को अपनी छत पे बैठकर विदाउट अ रूफ या विदाउट एनी शेड मैं आप लोगों को क्लास पढ़ाता हूं, इज दैट क्लोज टू योर क्लासरूम? नो. रियल वर्ल्ड में क्लासरूम आपका ऐसा दिखता ही नहीं है. देन दैट मीन्स दैट क्लासरूम जो मैंने छत पे बनाया हुआ है विदाउट एनी शेड इज लो इन ecological validity. तो लो इन इकोलॉजिकल वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ? लो इन इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब हुआ when the research procedures or the research itself is, या itself भी नहीं कहते, when the research itself or the lab situation is not close to the real world situation. Meaning कि मैंने एक लैब बनाया जो कि मैंने कहा कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड में जैसे होता है वैसा ही होगा, लेकिन ये रियल वर्ल्ड की तरह नहीं दिखता. इट्स डिफरेंट देन द रियल वर्ल्ड. ठीक है. सो ये है हमारा लैब एक्सपेरिमेंट. सो लेट्स मूव दिस. ऑलराइट. इसके बाद हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जब वेरिएबल्स को डिस्कस किया तो वेरिएबल्स में हमारे पास एक आईवी आ रहा है, एक डीवी आ रहा है, राइट. आईवी और डीवी के साथ साथ वी आल्सो हैव वन मोर थिंग दैट इज नोन एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? Extraneous variables are those variables. I'll write it first. Extraneous variables are those variables that have the same effect on DV, जिस तरह एक IV का effect आता है DV पे, but these extraneous variables are to be controlled by the researcher. And ये कंट्रोल कहाँ हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है ये कंट्रोल जब हमारा रिसर्चर एक लैब एक्सपेरिमेंट कर रहा है. क्यों? क्योंकि लैब एक्सपेरिमेंट में कोई भी चीज एंटर या एग्जिट मेरी मर्जी से होगी, कोई भी चीज मैनिपुलेट मेरी मर्जी से होगी.
तो वहां पे मैं एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल को होल्ड कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, ताकि उसका इफेक्ट हमारे डीवी पे ना आए, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऑथेंटिकली ये बताएगा कि डीवी ने जो परफॉर्मेंस शो करी है दैट इज बेस्ड on the manipulation that was done onto the IV by the researcher and by nothing else. एग्जाम्पल के तौर पे वापस से समझाता हूं, हमारा एग्जाम्पल क्या था आईवी एंड डीवी में। मैं एक टीचर हूं जो कि मोड ऑफ टीचिंग चेक करना चाहता है कौन से मोड ऑफ टीचिंग से कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता है, क्या ऑनलाइन से ज्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं या फिजिकली ऑनलाइन, फिजिकल या इन पर्सन क्लासेस में ज्यादा बेहतर समझ आता है बच्चों को। तो मोड ऑफ टीचिंग को टेस्ट करना चाह रहा था, तो मेरा मेथड आईवी क्या हो सकता है, आईवी मेरा होता है मोड ऑफ टीचिंग, डीवी क्या होगा बच्चों की परफॉर्मेंस, कौन से वाले मेथड में ज्यादा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया, जब ऑनलाइन पढ़ाया तब ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, या उन्होंने जब फिजिकली या इन पर्सन क्लासेस में पढ़ा तब ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होगा, अगर मेरी क्लास के बच्चे मुझसे तो पढ़ रहे हैं बट दे हैव आल्सो हायर्ड अ प्राइवेट ट्यूटर, नाउ दैट प्राइवेट ट्यूटर इज आल्सो टीचिंग देम, तो वो प्राइवेट ट्यूटर की टीचिंग की वजह से अगर बेहतर परफॉर्म कर गए तो, राइट, डू वी अंडरस्टैंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का भी वही इफेक्ट है जो कि एक टीचर का, जो मेरा इफेक्ट है, राइट, जो एक आईवी का इफेक्ट है। आईवी क्या था, मोड ऑफ टीचिंग, whereas एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, वही चीज बच्चा घर जाके ट्यूशन टीचर से भी पढ़ रहा है, देन दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा ट्यूशन टीचर के पढ़ने से भी और मेरे पढ़ाने से भी। सो दैट मीन्स जो इफेक्ट आएगा डीवी वो ऑथेंटिक नहीं होगा। लेकिन अगर एक लैब एक्सपेरिमेंट है जहां पे मैंने आप लोगों को बुलाया, पढ़ाया और फौरन ही उसका टेस्ट ले लिया, मैंने घर जाने का मौका ही नहीं दिया, तो मैंने क्या इसको कंट्रोल कर लिया, हेंस मैंने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर लिया। सो इन एनी रिसर्च एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स are to be controlled by the researcher. Why? Because they may have the same effect on the DV as a IV would have. तो एक आईवी के ऊपर एक्सट्रेनियस वेरिएबल का सिमिलर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें एज अ रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, सो दैट वी गेट एन ऑथेंटिक रिजल्ट आउट ऑफ आवर रिसर्च। अब ये आपको अगर समझ आ गया है तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर थिंग, एक और वेरिएबल जिसका नाम होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। नाउ व्हाट इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, अ कंफाउंडिंग वेरिएबल इज नथिंग बट एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं, जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते और उसका इफेक्ट डीवी पर हो जाता है, then that extraneous variable becomes a confounding variable. So a confounding variable is nothing but a extraneous variable after it has affected the DV, और हम कह सकते हैं influenced the DV. In other words, अगर एक और डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ये हो सकती है, confounding variable
It is nothing but a extraneous variable after it influence after it influences the DV. It is then known as a confounding variable. ठीक हो गया जी? Look, we are now moving on to one more concept in psychology जिसको हम कहते हैं conditions. क्या कहते हैं? Conditions. ये conditions बहुत important होती है. So we have two types of conditions. Number one, we have experimental condition, and number two, we have a control condition. So एक experimental condition क्या होती है? An experimental condition is a condition, yeah, it is a group, yeah, condition upon which the manipulation of IV is taking place. So for example, मेरे पास 20 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ. 10 बच्चों को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, 10 बच्चों को मैंने दूसरे ग्रुप में डाल दिया. एक ग्रुप जो 10 बच्चों का है उन लोगों को मैंने बना दिया एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. जो बाकी 10 बच्चे हैं उन लोगों को मैंने बना दिया कंट्रोल कंडीशन. जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर मैं वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा. हेंस द नेम सजेस्ट ये ग्रुप हो गया मेरा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. कंट्रोल कंडीशन के ऊपर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडीशन नहीं रन करूंगा या मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा. एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इनको लैब रैट्स बना दूंगा. बाय एक्सपेरिमेंट्स मेरा मतलब ये है कि मेरी जो भी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह पहले एग्जांपल दिया कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और इन पर्सन भी पढ़ाऊंगा. सो मैंने इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वाले बच्चों के ऊपर इन 10 बच्चों को पहले मैंने फिजिकल क्लासेस में भी पढ़ाया, फिर मैंने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया. तो दैट मींस कि मैंने इन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट रन कर दिया. कंडीशन जो कंट्रोल कंडीशन है, इन बच्चों के ऊपर मैं कुछ भी नहीं करता. इनको एज इट इज रहने देता हूं जैसे उन लोगों का एनवायरनमेंट चल रहा है. आई डोंट डू एनीथिंग ऑन देम. व्हाई? बिकॉज द कंट्रोल कंडीशन इज देयर टू compare. Against whom? Compare the results against the experimental condition. जब मैं experimental condition के ऊपर अपने experiments run करूंगा, उसके जो results आएंगे उन results को मैं एक normal situation वाले group से जिसके ऊपर कोई experiment नहीं की गई उससे compare करूंगा कि एक normal situation में कैसे बच्चे perform कर रहे थे. How were the students performing in a normal environment, in a normal situation, and then compare those with the condition or with the results of my students who have been experimented upon. Agar to results similar hain, then that means my experiment has failed. But if the results have changed or if the results have differed, then I know कि मेरी experiment या तो successful हो गई या तो successful नहीं हुई. And I will make the required changes and then perform my experiment again. So I hope ये दोनों conditions का आपको समझ आ गया हो. There are two types of conditions: experimental condition, control condition. Experimental condition is basically the condition. It is a group on to which the experiment is conducted, onto which the experiment is done, exhibited, performed. सही है. Control condition is a group, is a situation where you do not do anything
You let them function in their normal manner and then compare the results.